Hi, chapter seed, germination and structure. So in this particular chapter, we are going to learn its contents. What are the contents in this particular chapter? First of all, we learn about the seed, then we learn about its types, and maize and bean seed, we learn that it in detail. So germination and its types we'll study, condition which favor germination, and some experiments relating to that. And the last topic will be our seedling. So without any further ado, let's begin. So, before proceeding towards the definition of seed, you must know that seeds are various of types. Seeds can be of sunflower, maybe of corn, oat, pumpkin, and mustard, chickpea, etc. So, you can see these are the various seeds of various plants and fruits, you can also say. So, moving to the definition of seeds. So seed is what? We have learned it that seed is a ripened ovule. Seed is a ripened ovule, and in that particular seed it contains an embryo which develops into a new plant. So seed is the basic from which the whole plant develops. So seed coat, it protects the embryo from any mechanical change or damage what happens. So seed covering, it protects the particular seed from any other damage that may be mechanical, chemical or any other. So example, as you learned in the previous slide that these are the examples of seeds. So seeds example given in your book are bean seed and peas. And what is the fruit? Fruit is the enlarged ripened ovary. We have learned this that fruit is ovary. Ovary develops to make fruit and ovule it develops to make seed. So what happens is that fruit is an enlarged ripened ovary. When the ovary ripens, it is called fruit, and the ovarian walls forming the fruit worm. And what happens that ovarian wall, it forms the fruit wall which encloses the seeds inside it. And the fruit also helps in protecting the seed which lies inside it, and it helps in seed dispersal. So as you can see example, that is mango or pea pod. So as you can see in this particular diagram that this is the fruit wall of mango, and inside it lies the seed. See, and there are pea pod also present there. So this is your fruit. And going to the grain is what? It is also a fruit, but in this case the fruit wall and the seed coat, they are fused together to form a protective layer. So in grain what happens is that the fruit wall and the seed coat, they are fused together, okay, for the function that is protection. Example you can see in maize and wheat. So maize and wheat is what? Particularly a grain. We see them as grain. So there is the next topic that is more about seeds. So you know that it is a mature ovule after fertilization. Seed is what? A mature ovule which is formed after fertilization, and it contains tiny living plants, the embryo. What does it contain? It contains embryo, as you have studied few seconds earlier. Next, the embryo consists of a radicle. We have learned this also that embryo, it consists of radicle which is a future root. So embryo, it consists of plumule and radicle. So what happens that plumule, it makes the shoot, future shoot, and radicle, it makes the future root. So, and the cotyledons or the seed leaves, they make the future leaves. Okay, so embryo contains radicle, plumule and cotyledons. So radicle give rise to the root system of the plant, plumule give rise to the shoot system, and the cotyledons, they give rise to the future leaves. And embryo, they remain in an inactive stage, that is known as a dormant stage. You must remember this, that inactive stage of any embryo or any seed is known as its dormant stage, which upon exposure to the favorable condition it germinates. And this dormant condition is, when favorable condition comes, so this dormant condition is suspended and the embryo or the seed, it starts to germinate of its own. The seed may also contain endosperm. So seed may have endosperm because it always requires nourishment. So what is endosperm? Endosperm is basically a nourishment providing tissue. So it contains the food particles, okay, for the nourishment of the embryo during germination, because it's obvious that seed requires something from which it can germinate, means it requires some nourishment. So nourishment to the seed is provided by the endosperm part.
So seed can withstand unfavorable condition of temperature drought. So seed, yeah, it can withstand any unfavorable condition by going into the dormant stage or its inactive stage. And what happens when this dormant state is suspended, or when favorable condition comes, the dormant stage is suspended and the seed starts to germinate. And we also know that seed, it takes even 100 of years or even more than that to remain suspended or to remain in its inactive form, because no favorable condition, so no suspension of the dormant stage, so the seed will remain in its dormant stage. So seeds may be of various size and various types. So first of all, we study the size. There are different types of seeds varying with their size. So some seeds are very small and they are barely visible to the naked eyes, means you can see with our naked eyes. Example of that small seeds may be poppy seeds, strawberry seeds. So these seeds can be seen without any microscope and they can be seen with the naked eyes. And some seeds, they are quite large, as you can see in mango. You eat mango and what you find inside it is a seed. So seed is what there, in that particular case seed is very large, so you can see it very clearly. And the largest seed are those of coconut and double coconut. As you can see, in coconut there are the largest seeds. So remember this, that the largest seed are those of coconut and double coconut. The shape, size and structure of seed of different plants vary considerably, and the basic structure of most of the seed is remains same. Means that seeds structure, its shape and size may vary. Okay, may vary from plant to plant or fruit to fruit. But what happens, the basic structure, that is the basic structure of seed, it remains same in almost all the cases. So moving to the types of seeds. So it according to on the basis of endosperm. Okay, on the basis of endosperm, the seeds may be classified as albuminous and exalbuminous. What they may be defined as albuminous and exalbuminous. So albuminous means endospermic seed. Okay, so what does it mean? It means endospermic seed. So endospermic seed, in such seeds cotyledons are very thin. So endospermic मतलब उसमें क्या present होगा? एंडोस्पर्म present होगा. अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो जो कॉटिलेडन्स है वो थिन होंगी और मेम्ब्रेनस होंगी. ओके, सो दे मे बी थिन एंड मेम्ब्रेनस एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट. क्योंकि एल्ब्यूमिनस मीन्स एंडोस्पर्मिक, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो कॉटिलेडन्स का इतना मेन फंक्शन नहीं होगा. सो तो कॉटिलेडन्स का ज़्यादा फंक्शन नहीं होगा, तो इट मे बी थिन एंड मेम्ब्रेनस बिकॉज द मेन फंक्शन इज ऑफ एंडोस्पर्म, एंड इन दिस केस एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल you can see in monocot albuminous seed. Example cereals, millets, palms. And in dicot aluminous seeds, that is poppy, custard, apple. ठीक है. So in सब cases में क्या होता है, endosperm present होता है. So these seeds are known as जो albuminous seed. Next is X-albuminous seed. So X-albuminous seed का मतलब है that is non-endospermic. X मतलब कि जिसमें endosperm क्या है, absent है. So in such seeds what happens, the cotyledon stores food. तो cotyledon store करेंगी food, क्योंकि seed को क्या चाहिए होता है, nourishment चाहिए होता है during germination. तो इस केस में अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो इस केस में cotyledons एंडोस्पर्म का फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब वो फूड को स्टोर करके रखती है. अगर वो फूड को स्टोर करके रखेगी तो जो cotyledons हैं वो क्या हो जाएंगी, thick as compared to thin, and they will become fleshy. So it is also present in monocot as well as in dicot. So monocot X-albuminous seeds are Vallisneria, orchids, and in dicot you can see gram, pea, mango, mustard, etc. So these are the examples of albuminous and X-albuminous seed. So this is the major difference between albuminous and X-albuminous, or which is also called non-albuminous seed. So you can pause the video and see. So this is what I explained you a few seconds before. So pause the video and see it. So this is what I was talking about seed germination, that is there is a seed and what happens during favorable condition the seed germinates. So seed से क्या निकलता है, रेडिकल. ठीक है, जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, जो नीचे अर्थ की तरफ क्या होता है, ये डेवलप होता है. और इसके अपोजिट दैट इज स्पिम्यूल ऊपर से अराइज होगा तो वो शूट सिस्टम बनाएगा एंड रेडिकल विल मेक द रूट सिस्टम. सो आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर यू कैन सी दैट इज रूट. सो रूट and radical are, it is pretty good to remember in this way that R stands for radical and R stands for roots. So
रेडिकल इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, तो नेगेटिवली यहाँ पे सन होगा, अगर सन होने के कारण वो क्या होगा, ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बन जाएगा। वेयर एज पिम्यूल यू कैन सी यहाँ पे सन है तो सन की तरफ जा रहा है, सो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और अर्थ या सॉइल से अगेंस्ट जा रहा है, सो दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच यू हैव टू रिमेंबर इट। तो आगे वाली सीड में आप देख सकते हैं रूट हेयर्स आ गई और ऊपर से पिम्यूल बनना स्टार्ट हो गया, एंड दिस विल मेक योर लीव्स। सो दिस इज हाउ योर सीड जर्मिनेट्स इनटू अ फुल फ्लेश्ड प्लांट। So next is there are kinds of seeds. What are kinds of seeds? So there are two different kinds of seeds you learn, that is monocotyledon and dicotyledon. So as the name suggests, or as the name is from the name it's very clear that monocotyledon means which contains only one cotyledon. Mono means one. तो जिसमें एक cotyledon present होगी, that is known as the monocotyledon seed. एग्जाम्पल दैट इज मेज एंड ग्रेन। तो मेज और ग्रेन ग्रासेस में क्या होता है, मोनोकोटिलेडन सीड प्रेजेंट होती है जिसमें एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। वेयर एज इन डाइकोटिलेडन सीड्स व्हाट हैपेंस कि इसमें क्या होंगे, डाई मतलब दो, तो इसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होगी। जैसे आप देख सकते हैं ग्राम में, बीन में, पी में, इफ यू सी प्रैक्टिकली सो यू मे ऑब्जर्व दैट उसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होंगी। अब हमारा टॉपिक है, हम स्टडी करेंगे बीन सीड और मेज सीड को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो स्टार्टिंग विद द बीन सीड, तो देखिए देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स, ठीक है। बीन्स के भी अलग अलग तरह होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग सच एज द ब्रॉड बीन्स, लामा बीन्स, फ्रेंच बीन्स एक्सेट्रा। But the general structure, as you've learned before also, that seeds may be of different kind, shape and varieties, but जो उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो बीन शेप मीन्स बीन सीड कैसी रहेगी, अब हमारी किडनी शेप, जैसे हमारी किडनी है, यू कैन सी इन ए फिगर कि किडनी की शेप की बीन सीड हमें दिखाई देती है विद अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव साइड। इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, कॉन्केव। कॉन्वेक्स इफ यू रिमेंबर इट इज इन दिस वे एंड कॉन्केव इज इन दिस वे। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीन सीड का कैसी शेप होगी, किडनी शेप विद अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव साइड। एंड इसमें क्या होगा, देखिए अब जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीड कोट कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टा। सो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, दैट इज कॉल्ड द टेस्टा, ठीक है। सीड कोट इज कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टा, द आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिंग कवरिंग, ठीक है। ये ब्राउनिश होती है और ये हार्ड होती है, क्यों, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन करनी होती है। नाउ इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सीड, ठीक है, इट्स प्रीटी क्लियर, and from injury and from any other mechanical chemical damage and from the attack of bacteria, fungi, insects, क्योंकि हमें पता है सीड कहाँ पे जर्मिनेट करेगी, सॉइल में, तो सॉइल में बैक्टीरिया भी होंगे, फंजाई होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उन सब से प्रोटेक्शन करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, टेस्टा। सो टेस्टा इज व्हाट योर हार्ड कवरिंग, व्हाट इज इट, इट इज योर आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग। नाउ टेगमेन, टेगमेन जो है इसकी इनर लेयर, टेस्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टेगमेन प्रेजेंट होगा, तो टेगमेन उसकी इनर लेयर है, ठीक है, नेक्स्ट टू द टेस्टा एंड इज आल्सो प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये साथ साथ में प्रेजेंट है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इन दिस वे दैट टेस्टा एंड टेगमेन दे बोथ फंक्शन इन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन सब का दोनों का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। नाउ हाइलम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट व्हाइटिश ओवल स्कार ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द सीड। तो जो हमारी सीड की जो कॉन्केव साइड है, एज यू कैन सी इन बी फिगर, दिस इज हाइलम। सो सीड की कॉन्केव साइड से अगर हम देखें तो हमें एक व्हाइटिश ओवल स्कार दिखता है, ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द स्पॉट, तो दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर द ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द ओवरी। नाउ ओव्यूल इज नाउ डेवलप्ड इनटू द सीड। सो ये एक ऐसा पॉइंट था जब ओव्यूल जो था ओवरी के अंदर था, तो ओव्यूल प्लेसेंटा के थ्रू द प्लेसेंटा, यू नो, ओव्यूल जो था वो ओवरी के साथ कैसे अटैच था, थ्रू दिस पॉइंट, ओके, थ्रू द प्लेसेंटा, वो अटैच टू द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड हाइलम। नाउ a tiny pore called micropyle is situated close to the, now there is also a point that is called micropyle, ठीक है, it is a pore basically जो किसके साथ क्लोज रिलेशन में होता है, हाइलम के साथ। सो दिस इज अ क्लोज, it is
attached very close to the hilum. So as you can see this is what your micropyle. ठीक है, तो micropyle आप देख सकते हैं किसके साथ में है, micropyle इधर है और हाइलम इधर है. तो यू कैन सी दैट micropyle और हाइलम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन में है, ये बहुत एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, मतलब नज़दीक नज़दीक अटैच्ड हैं. So what it does micropyle do, it marks the opening from where the pollen tube has entered the ovule, कि जहाँ से ओव्यूल के अंदर pollen tube गई होती है. So this is the point from where the pollen tube has entered the ovule. This is called micropyle. So micropyle के दो major function होते हैं. First is when soaked in water, the seed absorb water mainly through this micropyle. कि जब भी अगर हम किसी सीड को हम पानी में डालते हैं तो जो सीड एब्जॉर्ब करता है पानी, दैट इज थ्रू दिस पर्टिकुलर माइक्रोपाइल एंड इट मेक्स अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन. और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है. तो हमने पढ़ा है कि जब पानी में डालेंगे किसी भी सीड को तो माइक्रोपाइल से वो पानी अंदर जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो में, जो जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. अब रेस्पिरेटरी गैसेज के लिए डिफ्यूजन इन एंड आउट जो होंगी गैसेज, दैट इज ऑल्सो थ्रू दिस माइक्रोपाइल, ओके, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. नाउ बिलो द सीड कोट two thick cotyledons which contain food for the embryo and protects it. तो सीड कोट के जो नीचे दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होती है जिनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज हो सकता है, प्रोटेक्शन भी होता है. सो यू कैन सी एंड 6.1 फिगर दैट देयर आर 2 कॉटिलिडन्स. तो ये है 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है. अब ये जो एपिकोटाइल है ये हम आगे पढ़ते हैं. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब देखिए सी पार्ट में क्या हुआ, हमें एक कॉटिलिडन दिख रही है और एक इसके पीछे है. सो अब यहाँ से रेडिकल और पिम्यूल की क्या होने लगेगी, जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगेगी. सो अगर हम दो कॉटिलिडन्स को बहुत इजीली या बहुत केयरफुली अगर हम उन्हें सेपरेट करें तो एम्ब्रियो इज विजिबल देयर. ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, जो एम्ब्रियो है वो कॉटिलिडन्स के साथ क्या है, अटैच्ड है. एंड द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. हमने पढ़ा है एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, दैट इज वन इज रेडिकल एंड पिम्यूल. सो तो रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम ऑब्वियसली, एंड पिम्यूल इट विल मेक द शूट सिस्टम. ठीक है, नाउ द पिम्यूल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टेम विद अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स. ठीक है, कॉटिलिडन्स अब क्या होगा, लीव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि शूट सिस्टम बन रहा है, एंड अ ग्रोइंग पॉइंट बिटवीन देम. नाउ the region of the axis between the point of the attachment of the cotyledon and the pimmule is called epicotyle. This is very important. जो epicotyle और hypocotyle हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, important हैं, क्योंकि ये ज़रूर आएंगे पेपर में. Now epicotyle, see how to remember this epicotyle and hypocotyle. Epicotyle means the region between the point of attachment of the cotyledon and the pimmule. ठीक है, PE कर लीजिए, P for pimmule, E for epicotyle. So अब पीई मतलब कि कॉटिलिडन्स और पिम्यूल्स के बीच में जो भी हमारा रीजन है वो एपिकोटाइल कहलाएगा. एंड द रीजन बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कॉटिलिडन बिलो द कॉटिलिडन, अब कॉटिलिडन्स के बिलो भी कोई पार्ट होगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज हाइपोकोटाइल. सो यू कैन से दिस इज योर एपिकोटाइल हियर एंड दिस इज योर हाइपोकोटाइल. तो एपिकोटाइल आप देख सकते हैं पिम्यूल और कॉटिलिडन्स के बीच में जो है दैट इज नोन एज योर एपिकोटाइल, और जो रीजन जो कॉटिलिडन्स के नीचे है दैट इज नोन एज योर हाइपोकोटाइल. हाइपो मतलब नीचे, सो दैट इज द वे यू कैन रिमेंबर, दैट इज हाइपोकोटाइल इज द रीजन बिलो द कॉटिलिडन्स. So this was all about your bean seed. Now moving further to our maize grain. So the maize grain is a single seeded fruit. It is a single seeded fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused. हमने ये पहले भी पढ़ा कि जो मेज है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज अ ग्रेन विच इज एक्चुअली ऑल्सो अ फ्रूट. बट इस केस में क्या है, जो फ्रूट वॉल और जो सीड कोट है वो दोनों क्या है, टुगेदर फ्यूज्ड हैं. ठीक है, ताकि वो साथ में क्या कर सके, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर सके और वो प्रोटेक्शन कर सके. सो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ग्रेन. सो दिस इज द फ्रूट विच वी कॉल इट एज ग्रेन. So, on one side of the grain consists of a small lighted colored oval area which marks the location of the embryo inside. ठीक है, सेम है कि क्या होगा,
एम्ब्रियो होगा अंदर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एंडोस्पर्म, और इसमें एक बहुत बड़ा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब देखिए बीन सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इसके कॉटलिडन्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थिक थे। बट इन द मेज ग्रेन में क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसके कॉटलिडन्स क्या होंगी, थिन होंगी, ओके, एंड मेम्ब्रेनस होगी। तो इसमें लार्ज एंडोस्पर्म प्रेजेंट है एंड विच इज रिच इन स्टार्च, और एंडोस्पर्म किस में रिच है, इट कंटेन्स richment in starch, and the endosperm and the embryonic part are separated from each other by a thin epithelial layer। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनिक पार्ट है उनमें कोई सेपरेशन होना चाहिए, तो सेपरेशन के लिए क्या है, एक एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है। यू विल स्टडी दिस इन योर डायग्राम, तो अभी आप जस्ट जस्ट रीड इट आउट और आपको डायग्राम से बहुत इजीली क्लियर होगा। सो एपिथेलियल लेयर क्या करती है, एंडोस्पर्मिक पार्ट और जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है ग्रेन के अंदर उसको सेपरेट आउट करती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर एल्यूरॉन लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन। अब जो एंडोस्पर्म की जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दैट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड इज कॉल्ड द एल्यूरॉन लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्यूरॉन लेयर क्या होती है। इट इज सीन इन मेज ग्रेन, और ये एंडोस्पर्म की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो रिच इन प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉटलिडन। इसमें सिंगल कॉटलिडन होता है, और बीन सीड में हमने देखा 2 कॉटलिडन्स थी, तो इसमें क्या है, 2 कॉटलिडन्स हैं। तो एंड दिस इज योर सिंगल कॉटलिडन। इस केस में मेज ग्रेन में सिंगल कॉटलिडन है and therefore it is called as monocot, and you can remember in this way, that is M for maize and M for monocotyledon। तो दोनों सेम है MM, तो मेज ग्रेन क्या है, मोनोकॉटलिडन। तो एक पॉइंट यहां से बन जाएगा कि इसमें एक ही कॉटलिडन होगी, सिंगल, और बीन सीड में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो एक सिंगल कॉटलिडन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द स्कूटेलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेज ग्रेन जो है वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एज कम्पेयर टू द बीन सीड, बट इट्स नॉट दैट कि बीन सीड इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट। बट if we compare the bean seed with the maize grain, so maize grain is very important from examination point of view। So single cotyledon को हम क्या कहते हैं, scutellum, a radicle and a plumule। अब सेम है, रेडिकल प्यूम्यूल। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट, एंड प्यूम्यूल बनाएगा शूट। सो R for radical, R for root, that you can remember very easily। And see, the radicle is towards the pointed and is enclosed in a protective sheet called coleorhiza। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जो रेडिकल है, रेडिकल इसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव शीट जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी इस टाइम पे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर फर्दर क्लासेस। सो कोलियोराइजा, आर आता है बीच में, तो आर मीन्स रूट, तो रूट को प्रोटेक्ट करके रखेगी, दैट इज नोन एज कोलियोराइजा। एंड द प्यूम्यूल इज टुवर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन। हमें पता है प्यूम्यूल ऊपर की तरफ जाता है, तो यू कैन राइट इन योर वर्ड्स दैट प्यूम्यूल and is positively phototropic and negatively geotropic, and it is protective, it is it is enclosed in a protective sheet that is known as the coleoptile। ठीक है, तो प्यूम्यूल P आ गया इधर, तो you can remember in this way, it is a pretty good method to remember, that is coleoptile and coleorhiza। coleoptile में P आ रहा है तो it is a protective sheet of the प्यूम्यूल। coleorhiza R contains, so R मतलब root, तो root को protect कर रहा है। so this is your maize grain। Now see, we are going to come in its diagram। First of all, हम ये जो बॉक्स में दिया है we'll read it out, that is the maize grain is monocotyledons क्योंकि इसमें एक कॉटलिडन प्रेजेंट है, एंड एंडोस्पर्मिक हमने पढ़ा कि एपिथेलियल लेयर से क्या है, एंडोस्पर्मिक और जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है ग्रेन के अंदर दैट इज सेपरेटेड। सो अब देखिए maize grain is monocotyledon, endospermic, it's clear। Now other example of this type of grain that is monocotyledon and endospermic are rice, wheat and oat, so you can remember this also। अब देखिए हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स बाद में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम किसी ग्रेन को लॉन्गिट्यूडनली काटे तो जो हमें सेक्शन मिलता है दैट इज नोन एज इट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब देखिए इट इज, हमने पढ़ा था कि इसकी बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एलेरॉन लेयर। ठीक है, इसके अंदर अब देखिए जो एलेरॉन लेयर है सबसे, ये किसकी आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोस्पर्म की, बट इसके भी बाहर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड टेस्टा। हमने पढ़ा
एंड इन दिस केस हमने पढ़ा ये ग्रेन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फ्रूट वॉल और जो सीड कोट है वो दोनों फ्यूज्ड रहते हैं साथ में। तो इसमें भी यही लिखा है दैट इज फ्यूज्ड पेरिकार्ड एंड टेस्टा, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेन। नाउ अब ये टेस्टा के अंदर एलेरॉन लेयर आई। अब ऊपर देखिए दिस इज द एंडोस्पर्मिक पार्ट ऑफ द सीड, ये जो दिस इज द एंडोस्पर्मिक पार्ट, और ये जो नीचे है दिस इज योर एम्ब्रियोनिक पार्ट। ठीक है, सो जैसे हमने एम्ब्रियो लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज योर एम्ब्रियोनिक पार्ट और ये एंडोस्पर्मिक। अब ये दोनों एक लेयर से सेपरेटेड है, हमने पढ़ा था द लेयर इज एपिथेलियल लेयर। सो लेयर क्या है, एपिथेलियल लेयर। अब हमने स्कूटेलम पढ़ा था। सो स्कूटेलम, व्हाट इज द स्कूटेलम, इट इज अ सिंगल कॉटलिडन। तो अब देखिए ये कॉटलिडन्स है, दिस इज योर स्कूटेलम। ठीक है, अब एम्ब्रियो में हमने पढ़ा था कॉलियोपेटाइल होगा, कॉलियोराइजा होगा, पिम्यूल एंड रेडिकल। सो दिस इज द वे यू प्रेजेंट एम्ब्रियो इनसाइड द ग्रेन, दैट इज पिम्यूल रेडिकल। अब पिम्यूल हमने ऊपर लिखा है, रेडिकल नीचे लिखा है, दिस इज बिकॉज क्योंकि रेडिकल नीचे की तरफ जर्मिनेट होगा और पिम्यूल ऊपर की तरफ। सो दिस इज द बेसिक मेथड यू राइट इन दिस वे। सो अब पिम्यूल है अंदर, उसके बाहर कौन सी लेयर होगी, कॉलियोपेटाइल, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। वैसे ही रेडिकल नीचे वाली तरफ है, बट उसके नीचे भी एक लेयर होगी दैट इज नोन एज द कॉलियोराइजा, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। सो दिस वाज योर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ एक्सटर्नल फीचर्स में हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल अगर हम किसी मेज ग्रेन को देखें तो हमें क्या क्या दिखता है। सो रिमेन्स ऑफ स्टाइल यू कैन सी हियर। ठीक है, हमें ये विजिबल है। पोजीशन ऑफ पिम्यूल भी दिखता है, स्कूटेलम भी दिखता है। पोजीशन ऑफ रेडिकल जो नीचे वाली तरफ है वो दिखेगा, पिम्यूल ऊपर वाली तरफ है, जो कैन सी ये पिम्यूल है तो ये ऊपर है, तो यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द पिम्यूल एंड एंडोस्पर्म जो हमारा फोलियडन टिश्यू है। So, difference between bee and maize grain, I'm not going to dictate it, but you can read it. So, it's very important. This is what, summary of what we have read in detail. So, this is your monocot and dicotyledon seeds. तो देखिए हम देख सकते हैं डाइकॉट्स में हम देख सकते हैं 2 कॉटलिडन्स हैं, मोनोकॉट में 1 ही कॉटलिडन है। सो दिस आर योर डायग्राम। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे जर्मिनेशन होती है वैसे वैसे क्या होते हैं, ये रेडिकल पिम्यूल बनाएंगे और फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अ प्लांट विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज योर मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड सी दिस इज व्हाट इज योर जर्मिनेशन ऑफ गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी के जर्मिनेशन इस तरह से है। अब गार्डन पी क्या है, हमारे पास डाइकॉट है क्योंकि इसमें 2 कॉटलिडन्स प्रेजेंट हैं। सो सेम मेथड गोज ऑन की जर्मिनेशन होगी, मोनोकॉट रेडिकल पिम्यूल बनेगा। ठीक है, अब ये जो इसका लास्ट वाला फिगर है ये देखिए, इट विल मेक यू वेरी क्लियर अबाउट द एपिकोटाइल रीजन एंड द हाइपोकोटाइल रीजन। अब हमने पढ़ा था एपिकोटाइल रीजन क्या है, कॉटलिडन्स और पिम्यूल के बीच में। तो ये देखिए ये कॉटलिडन्स हैं। ठीक है, अब कॉटलिडन और पिम्यूल के बीच में, कॉटलिडन और पिम्यूल के बीच में, ठीक है, सो ये कॉटलिडन्स है और ये पिम्यूल रीजन है, जो ऊपर वाला रीजन है जो हमारा शूट सिस्टम बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अब जो कॉटलिडन्स के नीचे वाला स्पेस है दैट इज नोन एज योर हाइपोकोटाइल। तो ये वाला रीजन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल रीजन। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू आई थिंक। कॉटलिडन है, हाइपोकोटाइल बन गया, कॉटलिडन्स कैसी हैं, ट्रू लिव्स बन गई हमारे पास। सो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारे पास प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अ फुल फ्लेज प्लांट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जर्मिनेशन। अब देखिए जर्मिनेशन क्या है, हम जर्मिनेशन किसको पढ़ते हैं, हमने पढ़ा ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड योर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो हमें सबसे पहले तो ये क्लियर है जर्मिनेशन कब होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, कि अगर सीड को वो सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी जो उसको रिक्वायर्ड है, देन द सीड विल जर्मिनेट एंड इट विल फॉर्म प्लांट। नाउ स्टार्टिंग द सीड कंटेन्स द डोर्मेंट एम्ब्रियो। ठीक है, डोर्मेंट एम्ब्रियो क्यों, क्योंकि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में रहेगा जहाँ पे वो जर्मिनेशन नहीं करेगा। So the seed contains a dormant embryo and in the dry season the seed is inactive. Dry seed में क्या है, seed जो है वो inactive रहता है. It is said to be in a state of dormancy. ठीक है, dormancy क्या है, a period of rest or an inactive stage. तो ड्राई सीड में क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत सारा पानी चाहिए, तो अगर उसको उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है,
so that will remain in an inactive stage. ठीक है. Now it appears to be without life, but in fact all the chemical activities of life are going on it. ठीक है. अब हम बोलते हैं जैसे हमने इंटरफेस पढ़ा था, इंटरफेस इज व्हाट, डुप्लीकेशन जिसमें होती है. अब उसको भी हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं. बट यू नो इन दैट स्टेज और इन दैट इंटरफेस रेस्ट नहीं कर रहा होता है, बट डुप्लीकेशन हो रही होती है. सो दिस सेम गोज हियर कि डोरमेंसी जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं. अगर खत्म हो जाएगी तो फिर वो कभी जर्मिनेट ही नहीं करेगा. बट इस केस में जो केमिकल एक्टिविटीज हैं दे आर गोइंग ऑन, ऑल्दो दे आर वेरी स्लो एंड लिटिल फूड इज यूटिलाइज. ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्लो हो रही हैं, इसलिए हमें क्या लगता है दैट इट इज इट इज विदाउट लाइफ. सो इट इज नॉट ट्रू. नाउ the dry seed consume oxygen and give out carbon dioxide both in extremely minute quantities and they release some heat as well. ठीक है, कि जो भी परफॉर्म होंगी एक्टिविटीज वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में होंगी, क्योंकि सीड को नहीं पता कि उसे फेवरेबल कंडीशंस कब चाहिए. तो जो उसका एंडोस्पर्मिक पार्ट है या फिर जो कोटिलेडन्स में स्टोर्ड फूड रहेगा, अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो उस केस में क्या है कि वो बहुत कम चीजें, कम खाना एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे फेवरेबल कंडीशंस कब मिलने वाली हैं. नाउ व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रॉपर कंडीशन, जब हम उस सीड को फेवरेबल प्रॉपर कंडीशंस में रखते हैं तो जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो है अवेकन्स, कि अगर हम किसी को सुला देते हैं फिर हम उसे उठाते हैं, तो द सेम गोज हियर कि अगर उसे प्रॉपर कंडीशन मिल रही है, उसे प्रॉपर नींद मिल चुकी, जस्ट इन केस यू जस्ट रिकॉल इट और रिमेंबर इन दिस वे कि किसी को अच्छी नींद मिल गई तो इट्स फ्रेश, इट अवेकन्स. सो सेम गोज विद द सीड. सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, अवेक हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा और इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग. फिर वो क्या हो जाएगा, ग्रो या जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. दैट इज कि क्या है जर्मिनेशन की, दैट इज ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग. ठीक है, तो ये है कि ये सब प्रोसेस हम क्या कहते हैं इसको, दिस इज व्हाट योर सीडलिंग. दैट इज सीडलिंग बन गई तो ये क्या हो गया, हमारे पास जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई. नाउ जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो. ठीक है, कि एम्ब्रियो से जो सीडलिंग की फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज योर जर्मिनेशन. नाउ a fresh seed from a plant normally does not germinate if the condition of the germination are favorable. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ड्राई सीड ही नहीं जर्मिनेट करती, बट यू कैन सी कि फ्रेश सीड अगर हम किसी प्लांट से निकाले तो वो भी एकदम जर्मिनेट नहीं करेगी. ठीक है, इट मस्ट पास थ्रू अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. अब इस सीड को भी एक पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी चाहिए होता है. क्यों, क्योंकि ये जो भी फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होनी है, ठीक है, वो हो सके, मतलब इट कैन अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन. सो दिस वाज योर जर्मिनेशन टॉपिक. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. अब क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो जर्मिनेशन के लिए जरूरी हैं. सो योर फर्स्ट कंडीशन इज वाटर. ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर चाहिए होता है. मेन जो है फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. सो विल स्टडी स्टार्टिंग विद द वाटर. आप देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो है वाटर की. तो वाटर मेन है. ठीक है, अब देखिए द सीड ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, क्योंकि सॉइल में है तो वो अपने सराउंडिंग से ही, अपने सॉइल के आसपास या एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, वाटर लेगा. इन नेचुरल कंडीशंस नाउ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑल ओवर द सर्फेस बट मीनिंग टू द माइक्रोपाइल. वी हैव रेड दिस कि जो सीड एब्जॉर्ब करती है वाटर को दैट इज फ्रॉम द माइक्रोपाइल. Now, the two main uses of the water are, जो दो मेन यूज हैं वाटर के, that is the seed swells and consequently the seed coat ruptures. ठीक है, तो सीड क्या होगी इस केस में, स्वेल हो जाएगी और सीड कोट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा. ठीक है, तभी तो जर्मिनेशन स्टार्ट होगी. उसको वाटर मिला, वो स्वेल अप हुई, उसका जो सीड कोट है वो रप्चर हुआ. ओके, एंड अलाउइंग द रेडिकल टू कम आउट. ठीक है, और फिर वो क्या करता है, वहां से रेडिकल जर्मिनेट करना स्टार्ट होता है, फिर वो रूट सिस्टम बनाएगा. नाउ सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं तो वाटर बहुत ही एक नेसेसरी फेवरेबल कंडीशन चाहिए हमें. ठीक है, एंड फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन फॉर द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडन्स और द एंडोस्पर्म सो दैट इट मे कन्वर्ट इनटू अ डिफ्यूजेबल फॉर्म
that we utilize by the growing embryo. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं, और वाटर इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो हमारा स्टोर फूड है सीड के अंदर या एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन्स के अंदर, तो उसको एक डिफ्यूजेबल या डिजॉल्व्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो वो कब होगा? जब वाटर होगा. तो इसलिए वो डिजॉल्व फॉर्म में होगा और फिर हमारा जो एम्ब्रियो है वो उसे यूटिलाइज कर पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज योर सुटेबल टेम्परेचर. अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जो वाटर है वो कैसे इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज योर नीड ऑफ वाटर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. आप देखिए, आप एक बीकर में 2 बीकर लीजिए. एक बीकर में क्या रखिए? ड्राई कॉटन वूल. ठीक है, मतलब आप उसमें जरा भी पानी मत डालिए और कॉटन डाल दीजिए, एंड यू जस्ट पुट द नॉन जर्मिनेटेड सीड्स. ठीक है, और दूसरे में वेट कॉटन वूल डालिए. कॉटन को पानी के साथ रिंस करते रहिए, ठीक है, हर दिन. तो क्या होता है, और यू जस्ट पुट वाटर इनसाइड द सीड्स और सीड इनसाइड द वाटर. तो हम देखेंगे काफी दिनों बाद दैट द बीकर बी विल हैव द जर्मिनेटेड सीड्स. इसमें भी हमने क्या डाले होते हैं? नॉन जर्मिनेटेड सीड्स. बट क्योंकि वाटर जरूरी है सीड की जर्मिनेशन के लिए, तो इसीलिए जो बीकर बी है उसमें जो सीड्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो रही हैं? जर्मिनेट. उसमें रेडिकल और प्यूम्यूल बनना स्टार्ट हो रहा है. बट इन बीकर बी यू कैन सी देयर इज नो जर्मिनेशन. द सीड्स आर एज सच कि नॉन जर्मिनेटेड थी और वो नॉन जर्मिनेटेड ही हैं. सो दिस इज हाउ योर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ योर सीड. नेक्स्ट है सुटेबल टेम्परेचर. अब सुटेबल टेम्परेचर भी क्या चाहिए हमें? सुटेबल चाहिए, कि ज़्यादा ना लो हो ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा हाई होगा तो एंजाइम्स के लिए एक्टिव एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे, और लो होगा तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव रहेंगे, मतलब वो नहीं कर पाएंगे अपनी एक्टिविटी. सो कि बहुत लो और बहुत हाई जो है वो भी अनसुटेबल है जर्मिनेशन के लिए. ठीक है, एंड वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, अगर बहुत लो टेम्परेचर होगा तो ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो विल बी सस्पेंडेड और विल बी इनहिबिटेड. इनहिबिट मतलब उसको रोक के रखता है. एंड वेरी हाई टेम्परेचर विल डिस्ट्रॉय इट्स डेलिकेट टिश्यू. ठीक है, तो जो अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसके जो डेलिकेट टिश्यू हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, और they will get damaged. And a moderate warm temperature, that is, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सुटेबल टेम्परेचर है वो क्या है? दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज योर मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पे सीड जर्मिनेट कर सकती है. दिस इज योर फेवरेबल टेम्परेचर. अब ये फेवरेबल टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिमम टेम्परेचर. नाउ seeds of tropical plants often need a higher temperature for germination than those of temperate region. This is very obvious that जो tropical plants होंगे, tropical region में जो plants होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू द सीड्स और द प्लांट्स दैट आर इन द टेम्परेट रीजन. ठीक है, सो दिस वॉज योर अबाउट टेम्परेचर. विल गो इट बाय क्लियरिंग द डायग्राम. ठीक है, डायग्राम्स आपको बहुत ईजिली क्लियर होगा. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. सो देखिए, ये है आपका टेम्परेचर का डायग्राम. अब बीकर ए ले लीजिए जिसमें आपने आइस क्यूब्स डाली हैं, तो इसमें क्या हो गया? बहुत लो टेम्परेचर हो गया. इसमें भी हमने जर्मिनेटेड सीड्स डाले, और बीकर बी में हमने मॉडरेट रखा टेम्परेचर को. रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ग्रो करवाना चाहा, तो हमने देखा कि जो नॉन जर्मिनेटेड सीड्स जो बीकर बी में हमने डाली थी, विथ टाइम दे विल गेट जर्मिनेटेड. तो टाइम के साथ वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी. बट गोइंग टू द बीकर ए हम देखेंगे कि वो सीड्स क्या रहेंगे? नॉन जर्मिनेटेड रहेंगी, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज में ही रहेंगी. बिकॉज वी हैव लर्न दैट फेवरेबल टेम्परेचर और द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. सो दिस diagram or this figure will make you pretty clear about that temperature is also a basic need, or that is also a favorable condition for the germination of your seed. Now अगला जो हमारा है that is oxygen. अब oxygen, that's obvious, it's very very basic method or very basic that is required for the germination of our seeds. So oxygen during germination, there is a rapid cell division and cell growth for which energy is required. ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए जिसमें सेल डिवीजन बहुत जल्दी होना होता है, सेल ग्रोथ भी, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी. दिस एनर्जी इज ओनली मेड अवेलेबल बाय द सेल रेस्पिरेशन.
ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब हमें ले लीजिए इन केस ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो, क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होती है, दैट इज वॉट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। अगर हम खाना नहीं खाएं, अगर हमें हमारे अंदर रेस्पिरेशन ना हो, तो विल फील वेरी वीकन और वेरी लो। सो सेम गोज विद द सीड। अगर उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो उसके एंडोस्पर्म या कॉटलिडन्स में प्रेजेंट है, अगर वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उसे एनर्जी मिलेगी, एंड हेंस द नीड फॉर ऑक्सीजन इज वेरी ऑब्वियस। तो ऑक्सीजन की जो नीड है वो उसे चाहिए होती है, ठीक है। सो आई शो यू अ फिगर जहां पे आपको मैं बताती हूँ दैट इज ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। अब देखिए, आप 2 बीकर ले लीजिए। फर्स्ट आप वेट कॉटन वूल डाल दीजिए, ठीक है, जिसमें क्या है, पानी भी मिल रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में भी हमने रखा है, एंड दैट इज जर्मिनेटिंग ग्राम सीड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया? सीड्स डाल दी, दैट वर नॉन जर्मिनेटेड एट सम पॉइंट, बट क्योंकि इसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, ठीक है, इसको यहाँ से क्या मिल रही है? ऑक्सीजन, क्योंकि ओपन अप है तो ऑक्सीजन मिल रही है, इसको यहाँ से टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है, और वाटर तो यहाँ पे है ही है। सो what do you think? The seed will germinate or not? Yes, the seed will germinate. It's obvious कि अगर उसको तीनों favorable conditions मिल रही हैं तो seed will obviously germinate. But अगर आप बीकर बी में देखिए तो हमने यहाँ पे ऑयल लेयर लगा दी है, ऑयल लेयर डाल दी है, विच मीन्स कि ऑयल क्या करता है? ब्लॉक कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो नहीं आ पा रही है बाहर से। तो यू नो इट्स एक्स एज एन इंसुलेटर, कि वो अंदर बाहर जो है डिफ्यूजन जो है वो नहीं अलाउ कर रहा। तो यू कैन सी कि जो नॉन जर्मिनेटेड सीड्स हमने सेम टाइम पे सेम डे में डाली थी बेकर ए और बेकर बी में, तो यू कैन सी कि बेकर बी में भी काफी दिनों बाद वो नॉन जर्मिनेट रहेंगी, बट इन बीकर ए वो क्या रहेंगे? जर्मिनेटेड। सो यू कैन सी कि जो एयर है वो भी एक नेसेसरी फैक्टर है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो अगला जो है दैट आर सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन, इसमें भी सेम किया है। जो मैंने आपको डायग्राम्स और फिगर्स दिखाए दैट इज सेम, कि इसमें वही लिखा है कि अगर आप वाटर को नेसेसरी कंडीशन कैसे प्रूव करना है, तो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था कि जो वाटर है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो यू कैन सी कि यू कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फिगर कि इस यू कैन टेक 2 बीकर्स एंड व्हाट आई टोल्ड यू कैन राइट इट डाउन, एंड this will prove that water is very necessary or a favorable condition that is required for the germination of your seed. Next goes with the suitable temperatures. Temperature भी हमने पढ़ा कि अगर आप optimum temperature में रखेंगे तो क्या होगा? सीड जर्मिनेट होंगी। अगर वेरी लो और वेरी हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो द सीड विल नॉट जर्मिनेट। सो यू कैन एक्सप्लेन दिस फिगर। नेक्स्ट इज दैट इज टेम्परेचर, कि एयर कैसे हमारे लिए, ऑक्सीजन जो है वो कैसे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो द डायग्राम आई एक्सप्लेन यू दैट इज दिस डायग्राम, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑयल लेयर डाल दीजिए और सीड्स 2 बीकर ले लीजिए, तो जिसमें ऑप्टिमम हमें सब कुछ मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन सारी रिक्वायर हो रही हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हैं, तो सीड क्या होंगे? जर्मिनेट। एंड इन केस की जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो द सीड विल नॉट germinate. So this is how you can explain. Now next is a 3 bean seeded experiment. तो 3 bean seeded experiment में क्या है? see the diagram आप देख सकते हैं कि इसमें 1, 2 and 3 seeds डाली हैं। देखिए जो सबसे I'll mark this 1, 2 and 3। अब देखिए जो सबसे नीचे वाली सीड है, ठीक है, वो क्या है? फुल्ली इमर्ज्ड है वाटर के अंदर, विच मीन्स कि आप देख सकते हैं कि वो जर्मिनेट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों जर्मिनेट नहीं करेगी? बिकॉज व्हाट हैपन्स, वेरी लिटिल ऑक्सीजन विल बी डिजॉल्व इन द वाटर, कि वाटर में जितनी ऑक्सीजन होगी वो उसको यूटिलाइज कर लेगा, बट फुल फ्लेज प्लांट होना जो उसके रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? दिस सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर हम बॉटम वाली अगर हम बीच वाली मिडल और द सेकेंड सीड पर जाएं तो हम क्या देखते हैं कि द सीड विल जर्मिनेट, बिकॉज यू कैन सी द सीड इज पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर एंड पार्शियली इज इन द एयर। तो एयर में पार्शियली है तो वहां से इसको ऑक्सीजन मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, और नीचे हाफ इमर्ज नीचे है पानी के अंदर, तो उसे नीचे से पानी भी मिल रहा है। सो इसमें रेडिकल पिम्यूल्स जो हैं वो बहुत इजीली और अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत अच्छा प्लांट बनेगा।
तो यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे लीव्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो दिस इज दैट कि इस पर्टिकुलर सीड जो मिडल सीड है उसको सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, एंड दिस इज द रीजन दैट दिस सीड विल जर्मिनेट, रेस्ट ऑफ द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। अगर हम थर्ड वाली सीड पर जाएं तो थर्ड वाली सीड पर क्या है, दैट इज टॉप सीड डज नॉट जर्मिनेट एट ऑल। क्यों? वो तो जर्मिनेट ही नहीं करेगी। जो लास्ट वाली है वो थोड़ी सी जर्मिनेट करेगी बट उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज जितने डिजोल्व एयर है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन है, वो उसको यूटिलाइज कर लेगा, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन कि जो लास्ट वाली है, जो फर्स्ट वाली सीड है, दैट विल समवॉट जर्मिनेट बट फुली इट विल नॉट जर्मिनेट। मिडल इट विल फुली जर्मिनेट एज आई टोल्ड यू, बट जो थर्ड है वो तो जर्मिनेट ही नहीं करेगी, बिकॉज इट गेट्स ओनली ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज इसको सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज नॉट इट इज नॉट गिवन टू दिस सीड। इसमें इसको ना वाटर मिल रहा है ना इसको सनलाइट भी मिल रही है, बट द मेजर इज वाटर, क्योंकि वाटर से ही क्या होगा, सीड स्वेल होगी और जो बर्स्ट आउट होगा उसका सीड कोड रप्चर होगा, तो वहीं से रेडिकल और पिम्यूल की जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो अगर वाटर नहीं मिला तो दिस सीड विल नॉट जर्मिनेट। सो दिस इज योर 3 बीन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अब देखिए, both the epicotyle and the hypocotyle of the seed never elongate together during germination। जो एपिकोटाइल और जो हाइपोकोटाइल है, ठीक है, वो दोनों साथ में जो है वो इलोंगेट नहीं होते जब जर्मिनेशन हो रही होती है सीड में। इट इज आइदर द एपिकोटाइल और द हाइपोकोटाइल दैट इलोंगेट्स, कि दोनों में से एक इलोंगेट होगा, एक लंबा होगा। इफ द एपिकोटाइल इलोंगेट्स, अगर एक सिचुएशन है कि एपिकोटाइल इलोंगेट होगा और दूसरी सिचुएशन है कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, तो अगर एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है द कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, तो कॉटिलिडन्स क्या रहेंगी, अंडरग्राउंड। क्योंकि ये तो दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज यू हैव लर्न कि एपिकोटाइल क्या है, कॉटिलिडन्स और पिम्यूल्स के बीच का स्पेस, ठीक है। जो एपिकोटाइल है दैट इज व्हाट योर रीजन बिटवीन द कॉटिलिडन्स एंड द पिम्यूल। तो अगर एपिकोटाइल जो है वो लंबा हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, तो जो कॉटिलिडन्स है दे विल रिमेन अंडरग्राउंड, ठीक है। एंड जर्मिनेशन इज देन कॉल्ड हाइपोजियल। अब डोंट कंफ्यूज कि एपिकोटाइल है तो एपीजियल जर्मिनेशन होगी, नो। तो ये क्वेश्चन भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट। तो एपिकोटाइल होगा तो दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, कि कॉटिलिडन्स नीचे रहे हैं, तो इस जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल। यू कैन जस्ट रिवर्स द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर केस जब जर्मिनेशन की टाइम आता है। सो दिस यू कैन सी इन पी एंड ग्राम। एंड इफ द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है तो द कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, तो कॉटिलिडन्स क्या होंगी, ग्राउंड के ऊपर पुश होकर आएंगी। एंड दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपीजियल। तो इस वाली जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, एपीजियल। सो यू कैन सी इन केस ऑफ बीन एंड केस्टन। सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड एपीजियल, हैव अ ग्लांस ओवर इट नाउ। नेक्स्ट, a method to observe stages of germination, as I have already told you कि germination के अगर आपको stages observe करनी है तो you can just I can just show you a diagram जहाँ से आपको बहुत easily clear हो जाएगी कि जो stages हैं germination की वो क्या क्या है। So this is what your germination look like, ठीक है, कि पहले उसमें क्या होगा, एक सीड होगी, तो सीड के बाद आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस ऑल्सो डायग्राम, कि पी सीड में हाइपोजियल है, तो कॉटिलिडन्स क्या है, अंडर रहेंगी सॉइल के। बट बीन सीड में जो एपीजियल है तो इसमें क्या है, कॉटिलिडन्स ऊपर आ गई, कॉटिलिडन्स ऊपर आ गई, और कॉटिलिडन्स के नीचे वाला रीजन दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, और इसके पिम्यूल और कॉटिलिडन्स के बीच का रीजन दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दीज टू डायग्राम्स, ठीक है, कि हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है एंड एपीजियल जर्मिनेशन क्या होती है। सो these were your germination in some common seeds, that is pea seed and bean seed. So next is that is your maize grain. maize grain में भी आप देख सकते हैं क्या है, हाइपोजियल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कॉटिलिडन्स जो रहेंगी हाइपोजियल जर्मिनेशन में, द कॉटिलिडन्स विल रिमेन अंडरग्राउंड, ठीक है। सो रेस्ट इज सेम। अब नेक्स्ट आपके पास जर्मिनेशन आती है विविपेरस जर्मिनेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय विविपेरस जर्मिनेशन? अब देखिए,
मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा हो गया, सोनाटाटिया हो गया, शो अ स्पेशल मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं विविपेरी, इन विच सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट while it is still attached to the parent plant। कि सीड की जो जर्मिनेशन है वो फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है और जो फ्रूट है दैट इज अटैच्ड टू योर पेरेंट प्लांट, मतलब वो डिटैच्ड नहीं होता बट स्टिल पेरेंट प्लांट में होके अटैच होकर ही उसमें सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। After germination, this plant drops and the seedling into the soil, which develops a root and fixes itself। ठीक है, कि जब वो fall off करेगा तो वो नीचे soil में गिरेगा और उसमें क्या होगा, germination start हो जाएंगे, मतलब producing live young ones। So vivipary is something that which give rise to your young ones। So this is also seen in our plants। So this is your germination that is known as the viviparous germination। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज वॉट योर मैंग्रोव प्लांट, तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में क्या हो रहा है, फ्रूट के अंदर ही क्या हो रहा है, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। जब ये फ्रूट ये इस पेरेंट प्लांट से कट ऑफ होगा, डिटैच होगा तो इस सॉइल में गिरेगा। एंड यू कैन सी कि सीड की जर्मिनेशन कब स्टार्ट हुई, जब ये पेरेंट के साथ अटैच था, बट जब वो डिटैच हुआ तो डिटैच होने के बाद एक ये न्यू इंडिविजुअल बना पाएगा। बाय द सेम मेथड वी लर्न इन द प्रीवियस जर्मिनेशंस। Now, your last topic of this chapter is seedling. So, germination in any plant ends with the formation of seedling। कि germination किसी भी plant में germination का जो end result है that is what formation of your seedling। Seedling is a stage in the growth of a plant from a seed before it has wholly independent of the food stored in it। Okay, now the root of the seedling absorb water। क्या absorb करेंगी, water and minerals from the soil। वही है कि radical root बनाएगा, तो root का क्या function होगा, जो water और minerals soil में मिल रहे हैं उसको absorb करेगा और वो पूरे plant को supply करेगा। And the leaves they start manufacturing what they do photosynthesis and they start manufacturing food for the young plant which keeps growing, और वो grow करता जाएगा। ठीक है, and become a mature plant and produces flowers and seeds in its turn। ठीक है, so these were the functions कि ये क्या क्या करते हैं। तो रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना, वाटर मिनरल जो भी उसको मिल रहा है सॉइल से। लीव्स का या शूट का क्या सिस्टम है, दैट इज इसका जो फंक्शन है दैट इज इट डू फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज हाउ योर सीडलिंग या जर्मिनेशन का एंड रिजल्ट क्या है, सीडलिंग। सो दिस वाज योर टॉपिक सीडलिंग। सो विद दिस योर चैप्टर इज